Hi guys! Hey, I am a software engineer I'm an economist, and today we will compare the two professions. and we'll decide what works for which. Cool, so let's get started. So let's start with our introductions. I'm Simran. And I am Anshul I'm an economist. and I am a software engineer. I'm And from. software engineers are much cooler, by the way. Shut up. I've been born and brought up in Delhi, and most of my education has been from Delhi. And I am 26 years old, going on to 27, and abhi मेरा work experience has been for three and a half years. And I am a commerce and arts student. I am a computer scientist / software engineer. Computer scientist is just a glorified term. And I love to eat and play. And I am working for 4.5 years now. And that's about it. Hi, so coming back to the topic, we thought of making a video where we talk about our profession. And हम दोनों का बहुत ही varied experience है with respect to our profession. I work at a consultancy firm and we have had very varied experiences. We have seen the pros and cons of each. So yeah, we thought of putting it all together and sharing it with everyone and whoever it helps. ठीक है. I did my computer engineering from NSIT, which is now NSUT in Dwarka, in Delhi. And I graduated 4.5 years back. And you? Okay. So I did my schooling from Delhi, and I went on to take commerce, and I also had economics as a subject with me. Also, then I went to Delhi University. I took economics there also, and I was interested in that subject a lot. I wanted to learn more about it, especially development economics, econometrics. So I went on to do a master's in economics, and I did not really take any drop year. I was somewhat sure that I want to pursue or specialize in one field. So I went to Madras School of Economics. That's in Chennai. It's one of the very renowned institutes when it comes to economics. So and I took general economics there, and it's a 2-year full-time course, and you stay in Chennai. So that's where I did my masters. ठीक है. So I did not choose to go for masters. मैं 4 साल बहुत पढ़ लिया था तो मैं बोर हो गया था. So I went on to join Salesforce as a member of technical staff is what they call it. But essentially काम वही software engineer का होता है. थोड़ा कोड लिखो, थोड़ी documentation पढ़ो, थोड़ी इंग्लिश लिख दो, फिर थोड़ा कोड लिख दो. So Salesforce was in Hyderabad. That was an enjoyable time for me. फिर मैं 4 साल में हैदराबाद से और Salesforce से थोड़ा बोर हो गया. So I came back to Noida या Delhi to live with my family. And now I've joined Adobe इधर नोएडा में. And I've been here for almost 9 months. And here also I'm a software engineer, but they call it computer scientist, which I like much more than member of technical staff. So that's great. So how did you know you wanted to do software engineering? स्टार्टिंग 11th में नहीं, इनफैक्ट 6th क्लास के अराउंड मेरा फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट आया था स्कूल में. उस टाइम वो सिखाते थे क्यू बेसिक, विच आई रियली लाइक्ड. उसमें मेरे को बहुत मज़ा आया था. फिर क्यू बेसिक में मैं खेलता रहा है, इन्जॉयड. मैं ज़्यादा मतलब मोस्टली मैं पढ़ाई अपने आप घर पे मैथ्स और प्रोग्रामिंग वगैरह कर लेता था. बाकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट था नहीं मेरे को, तो मैं घर पे खेलता रहता था ऐसे क्यू बेसिक वगैरह से कुछ भी करे जा रहा हूँ, तो ऐसे टाइम वेस्ट करता रहता था. देन 11th में C++ आई, तो वो भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को. तो ऑल्दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट कम्प्लीटली अबाउट प्रोग्रामिंग, बट उस टाइम मेरे को क्या ही पता था. तो मेरे को लगा ठीक है प्रोग्रामिंग अच्छी लग रही है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं. एंड देन इट टर्न आउट टू बी ग्रेट. Most of the things I like about it. So 11th में तो you already took science, right? So in sort of we've already made that choice to go into the sciences. हाँ, into the sciences but not computer ना. 12th के बाद जब आपकी 12th कंप्लीट हो जाती है तो इंजीनियरिंग के तो सारे ऑप्शंस मिलते हैं. आप कंप्यूटर कर लो, मैकेनिकल कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और 15-20 ब्रांचेस होती हैं. Yeah. तो 9-10 से तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है मेरे को साइंस और मैथ पसंद आ रही है तो लेट्स टेक साइंस. ज़्यादा उस टाइम मेरे को पता नहीं था ये इंजीनियरिंग होती है वगैरह.
10th में मेरे को पता था साइंस पसंद आ रही है तो लेट्स टेक साइंस. Hmm. उसके बाद फिर मेरे को रियलाइज हुआ कंप्यूटर पसंद आ रही है तो लेट्स टेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग. फिर बस चलता गया. Okay. So tell me about yourself now. Okay, so when I did my masters from Chennai, so I was hired by Ford as a data analyst, data scientist, and I got to know कि वहाँ एक team है corporate economics की, and I was very interested in those roles because at the end of the day I had chosen to do economics. I didn't really enjoy data crunching all day long. That's a personal choice, though I think it's a very upcoming field. So I went on to sort of do an informal interview with that team, and I was hired by the team, and I was initially to shadow one of my senior colleagues, and I really enjoyed that kind of work. I used to learn about how global economies are doing, how the economies जो मुझे दी गई थी, which was ASEAN region, which is Vietnam, Philippines, South Korea, how are they doing, what is their forecast. मुझे econometrics यूज़ करने को मिल रहा था. मैं inflation, GDP इन सब में डील करती थी. So I just found that very interesting. So yeah, I enjoyed that, and मुझे writing research in general पसंद है, so वो भी एक part of work था. So I used to enjoy that a lot at Ford, and definitely the culture at Ford was extremely good. मेरी co-located नहीं थी टीम, तो मैं work from home या मेरा specific timing नहीं था. तो दैट वे कल्चर प्लस वर्क दोनों फोर्ड में वर वेरी नाइस. एंड देन मुझे इंडिया फोकस ज़्यादा करना था, तो मैंने रिसेंटली शिफ्ट लिया है टू EY इंडिया की पॉलिसी टीम. वर्क इज़ मोर और लेस अलॉन्ग दोज लाइन्स, ओनली दैट आई हैव अ लॉट मोर फोकस नाउ इन इंडिया बिकॉज आई रियली फेल्ट कि इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है. एंड वाई एम आई टॉकिंग मोर अबाउट साउथ कोरिया और वियतनाम व्हेन दिस इज़ द मोस्ट अपकमिंग मेजर इकोनॉमी. So how was your experience when you joined corporate world for the first time? For the first time, for the first 1 year when you join just out of college, बहुत challenging होगा, and होता भी है because learning का बहुत step होता है. आपको basic चीज़ें email writing, outlook, कैसे respond करना है, लोगों को CC करना है, meetings कैसे join करनी है, soft skills, मतलब इतना कुछ you have to learn in a very short period. So that becomes very challenging. I think that's for any role. That's for software engineering or maybe not for you because हमारा बहुत backend भी होता है. But even mine at Ford was backend. लेकिन हाँ, I focused on those things also. All of that was new for me. Other than that, at least I feel with EY, and because I'm a consultant here, my work-life balance is not as good as what is for a software engineer or what is for you, because since yours is more back-end, थोड़ा structure है उस चीज़ में. मेरा बहुत client facing है, तो you have to work on the timelines of the client. तो ये चीज़ तो हो जाती है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो काफ़ी चीज होता है पहले, क्योंकि कॉलेज से सब लोग आते हैं. फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स में जब हम गए थे तो मेरे कॉलेज से 5 लोग थे, एंड देन सेम मेरी एज के एटलीस्ट 20 लोगों ने ज्वाइन किया था उस टाइम पे. तो हमारा पहला साल तो पूरा कॉलेज की तरह निकलता है. सब चिल कर रहे होते हैं साथ में, थोड़ा बहुत काम करते हैं. स्टार्टिंग में तो इतने वो होते हैं, वहाँ TD टेबल है, फुटबॉल टेबल है, PS5 Xbox वगैरह रखा हुआ है, पूल टेबल है, बहुत सारे गेम्स होते हैं. स्टार्टिंग में कुछ काम तो होता नहीं ज्वाइन करके. तो वी वर्क फॉर 2-3 आवर्स, उसके बाद फिर 2-2 घंटे TT चल रहा है, 1 घंटा फुटबॉल चल रहा है. तो काफ़ी चिल कल्चर होता है स्टार्टिंग में. तो जो समझ नहीं आ रहा होता सब फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो सब एक दूसरे से पूछ के करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल हमें जब सेल्सफोर्स ज्वाइन किया था तो एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप मिलता है टू लर्न टेक्नोलॉजीज एंड लर्न बेसिकली हाउ थिंग्स वर्क इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. और वो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है सबको. तो मेरे से 1-2 महीने पहले कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था, तो जब मैं गया मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो मैंने तो सब चीटिंग कर ली थी उनसे. आई होप सेल्सफोर्स वाले ना देखे मेरा मैनेजर. तो बड़ा यही होता है, सब कोड वोड इधर उधर से कॉपी कर लो स्टार्टिंग में, तो क्योंकि वो टेस्ट की तरह होता है तो ईजी होता है. मतलब इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज मोस्टली जहाँ ज़्यादा हायरिंग होती है, क्योंकि सेम एज के बहुत लोग होते हैं. Because when you joined, the tech space was going through a boom. Maybe that's also why everything was very hunky-dory. It is still so. लेकिन I don't think that sort of mass hiring is going on right now. I'm not sure. हाँ, शायद उस लेवल
पे हायरिंग अभी तो रुकी हुई है मोस्ट कंपनीज में, बट हाँ ये भी मतलब अच्छा है कि सेल्सफोर्स वाज अ ग्रेट कंपनी, इसलिए भी मेरे को इतना इजी लगा कि कहीं भी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं था स्टार्टिंग में कि इतनी ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं, अपने पेस पे करना होता था। तो हाँ, सेल्सफोर्स का वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा था, सारे मैनेजर्स सारे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे, तो इसलिए भी वो एक्सपीरियंस इजी हो गया। तो आई थिंक हाँ, सेल्सफोर्स एनीवे आई थिंक सबको पता ही होता versus है। a software engineer versus maybe a front end consultant or economist. Again, economist में you could do a back end research also, जिसमें you get a very good work life balance. So, but I do feel growth gets hampered in that case, which is not the case as in software engineering. वो तो है ही back end. You get a better work life balance being a software engineer, I feel, or in back end roles. हाँ, जहाँ क्लाइंट फेसिंग नहीं है। जहाँ client facing नहीं है, right? Yeah. सो हाँ, नाउ कमिंग टू द पार्ट जो सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिफोर डिसाइडिंग कि कौन सी फील्ड में जाएं, कि आपकी प्लेसमेंट कैसे लगेगी और वहाँ सीटीसी कितना मिलेगा। सो इंजीनियरिंग में बहुत वेरी कर सकता है यार। टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट कंपनीज, बिकॉज मेरे को उसी का ज़्यादा आइडिया है, तो आपकी स्टार्टिंग रेंज हो सकती है फ्रॉम 6 to 7 lakhs, एंड टॉप कंपनीज में बिल्कुल जाओ जो कुछ कुछ रेयर केसेस होते हैं तो जस्ट आउट ऑफ कॉलेज एज अ फ्रेशर किसी किसी की 40, 45, 50 lakhs भी लग जाती है इंडिया में, तो बहुत बड़ी रेंज होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी। So, when it comes to CTC, if you are a college graduate, a bachelor's in economics graduate, you can get a starting of 6-7 lakh per annum. And if you have done your masters and you do something related to economics research writing, it can go up to 15 to 17 lakh per annum. Just after doing your masters, and again obviously you grow in that field, but you could also be a data scientist and उसमें 20-25 lakh per annum के भी लगते हैं, मेरे कॉलेज से भी लगे हैं, so that's also a very lucrative career. Yeah. So how to get into this economist jobs just after college? फ्रेशर के लिए क्या क्या इंटरव्यू में पूछते हैं, या क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल सेट होना चाहिए? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए इस चीज़ में, बिकॉज उसके विदाउट दैट इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस डे इन एंड डे आउट. सो यू हैव टू हैव बेसिक नॉलेज कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, जीडीपी इन्फ्लेशन कितना है, क्या पेन पॉइंट्स है अभी इकोनॉमी में, हमारा कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा चल रहा है, यू नो, एंड व्हाट आर द अपकमिंग थिंग्स that will drive the country, you know, so all of those things. लेकिन हाँ, all these you should not do because you have to, it should be because you want to. कि global oil prices कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, what will the impact of Russia-Ukraine war be on our economy, so those sort of questions. Clearly. So clearly, like, he does not have an interest in that. Even when I speak about it, it doesn't interest him. So obviously he would not enjoy working in this kind of setup, and these questions spark a very high interest for me. So I think that's the clear difference. I think interest पे बहुत आ जाता है. And yeah, your question as to how you get into it, you really have to apply to maybe research organizations or companies, apply to a lot of them, reach out to them on LinkedIn or Glassdoor, and try research organizations. Maybe if you can get an internship or a job as an analyst, they do not pay as well, or बहुत time unpaid भी होता है at the very start. लेकिन it's good to experience it or have an experience so that आगे companies consider you seriously. Top 5 or 6 organizations or companies जिसमें टॉप नहीं, मतलब जिसमें लोगों को अप्लाई करना चाहिए, ये वो सोच सकते हैं. So I'll tell you a mix of sub academia research and consultancy. So one can be any bank, जिसमें every bank has an economist का group. So any bank, for example ICICI Bank में you could be an economist. Again you'll have, ये सीधे सीधे नहीं आती opening, so you'll have to apply. Second, you can do think tanks, जैसे Center for Civil Society हो गया, so organizations like those.
थर्ड यू कुड गो फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जेपैल हो गया, तो बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन वगैरह चीज़ों में काम करते हैं एंड उसका क्या आउटकम हुआ। और फोर्थ कैन बी अ कंसल्टेंसी, ईवाई हो गया, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप हो गया, सो सब में पॉलिसी वर्क एंड रिपोर्ट्स बनाना। सो या Okay. So, how to get into software engineering? Mostly, I'll talk about the easy route जो होता है if you are pursuing engineering already. पहले वो डिस्कस करते हैं, then I'll cover others also. तो generally at the end of third year या during your fourth year companies आती है for placements. Mostly standard procedure होता है for all companies. First, most of them will have a written or a coding round जो कि online होगा. They will ask few MCQs, few coding questions which are related to data structures, algorithms. उसमें बेसिकली कोड लिखना होता है। आपको क्वेश्चन दे देंगे कोई एब्स्ट्रैक्ट सा या कोई बहुत सिंप्लीफाइड सा, उसके एग्जाम्पल्स मैं थोड़ी देर में दे दूंगा। मोस्टली क्वेश्चंस ये सारे मिल जाते हैं वेबसाइट्स पे ऑनलाइन, जैसे लीड कोड या गीक्स फॉर गीक्स, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, बहुत वेबसाइट्स हैं ऐसी। मोस्टली बच्चे वहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो तो फर्स्ट राउंड में तो ऑनलाइन होता है। सेकंड थर्ड राउंड में भी यही चीज़ें वो इंटरव्यू में पूछते हैं। दे विल इनवाइट यू फॉर इंटरव्यूज़, उसमें वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो भी आपको बता देंगे। देन यू हैव टू कम अप विद द सोल्यूशन, उनको बताना है। देन यू हैव टू राइट द कोड फॉर दैट। देन दे विल आस्क यू क्वेश्चंस कि ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि बेसिकली आप एक्सप्लेन कर पाओ अपना थॉट प्रोसेस कि क्यों ऐसे किया, हाउ वाई डू अप्रोच इट दिस वे। दे आर लुकिंग टू अंडरस्टैंड कि आप में एप्टीट्यूड है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का, उस तरीके की आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का या नहीं। तो बिकॉज इतने सारे ओपनिंग्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो प्रोसेस बहुत स्टैंडर्ड है। आप किसी वेबसाइट पर जाओ वो सब समझा देते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो इस सेंस में थोड़ा इजी हो जाता है। So what's the difference between people who get through companies and those who find it a little difficult in software engineering during the placements? यार प्लेसमेंट ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो मैंने सुना था बट मेरे को लगता नहीं था, और फिर मैंने खुद एक्सपीरियंस करके भी देख लिया, बहुत लक बेस्ड होती हैं। मतलब यू विल फाइंड द स्मार्टेस्ट पीपल ऑफ योर कॉलेज जिनका अच्छी से अच्छी कंपनीज और बेसिक कंपनीज में भी नहीं हो रहा, एंड यू विल फाइंड पीपल हु यू थॉट, हु यू डिडंट थिंक कि विल क्रैक टॉप कंपनीज, बट वो टॉप कंपनीज निकाल लेते हैं भाई, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब। तो बहुत मतलब ऑब्वियसली वो है कि आपने कितनी पढ़ाई करी, कितनी मेहनत करी है, बट लक फैक्टर भी बहुत आ जाता है इस टाइम पे। सो यही होता है यार, अगर नहीं निकल रही कंपनीज तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, डीमोटिवेटेड, करते रहो, कंपनीज आती रहती हैं। जब कॉलेज में नहीं आती तो ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करके, रिक्रूटर्स को ईमेल करके, एंड हाँ ट्राई करते रहते हैं। तो पढ़ते रहो, देखते रहो बाकी कंपनीज के, और उन कंपनीज के पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं आराम से कि वो क्या पूछते हैं इंटरव्यूज में। स्पेसिफिक प्रिपरेशन करके जाओ तो हो जाता है, बट हाँ इट गेट्स हार्ड ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स। Even for every college, irrespective of the domain you're in. हाँ मतलब आप देखोगे आपका 6 लोगों का, 5 लोगों का बहुत टाइट ग्रुप है, कुछ लोगों की लग गई प्लेसमेंट, कुछ लोगों की नहीं लगी, तो मुश्किल हो रहा था जिन लोगों की नहीं लगती उनके लिए। बाकी सब पार्टी कर रहे हैं, वो अभी तक पढ़ाई करके इंटरव्यू दिए जा रहे, नहीं हो पा रहा, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। आई थिंक दिस इज फॉर एवरी फील्ड, एवरी इंडस्ट्री, एवरी कॉलेज, सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं। Is it coming out as कि software engineering की लाइफ प्रोसेस एंड इवन CTC सब बहुत चिल है, बहुत सही है, एंड यू नो इफ यू टेक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज it's very difficult to get through things and this and that? नहीं यार, इंजीनियरिंग भी डिफिकल्ट है वैसे। getting into engineering as everyone knows कि बहुत मुश्किल है। मतलब 11th-12th में जो पढ़ाई करनी पड़ती है इंजीनियरिंग के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होती है। ऑब्वियसली आप पूरे 2-3 साल उसमें देने पड़ते हैं अच्छे से, उसके बाद भी कितने लोगों का नहीं होता कॉलेजेस में, और फिर परेशान हो जाते हैं लोग। एंड देन अगेन कॉलेज पे बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ऑल्दो वो बहुत इम्प्रूव हो रहा है कि कॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है कुछ हद तक, कि अच्छी कंपनीज कॉलेज को बिना देखे इंटरव्यूज ले रही हैं स्किल सेट देख के। But the process standardizes so anybody can apply as long as they can write a code, right? They can at least get through the first or 2 rounds. नहीं यार, बिकॉज कितने लाखों लोग अप्लाई करते हैं। अब वो फर्स्ट राउंड भी लाखों लोग भी नहीं दे सकते ना कंपनीज। तो सबसे पहली लेवल ऑफ फिल्टरिंग कुछ कंपनीज कर लेती हैं या कर लेती थी, अभी भी करती हैं कंपनीज, कॉलेज लेवल पे फिल्टर कर लेती हैं
कि इफ़ यू आर फ्रॉम दीज कॉलेजेस तो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, या फिर आपकी कॉलेज में अच्छी परसेंटेज आई हो, CGPA आए हो 8+, 7+ तो देंगे। तो वो फिल्टरिंग हो जाती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाता है। मतलब अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो थोड़ा इजी हो जाता है टू गेट इनटू कंपनीज, एंड देन ऑन कैंपस आ जाती है मोस्ट कंपनीज तो अच्छे कॉलेज में, तो उससे भी इजी हो जाता है। Tell me, is it that you really have to be at top of a game, in the sense that whatever new codes or tech is coming, you have to be able to adapt very fast and you have to keep an eye out for that? Is that so, or you become redundant? Is that so? पीपल से दिस कि यू हैव टू, कि देखना पड़ता है क्या क्या नया आ रहा है, क्या क्या इवॉल्व हो रहा है टेक इंडस्ट्री में, बट प्रैक्टिकली बहुत नीडेड नहीं होता है टू सर्वाइव इन द टेक इंडस्ट्री, टू ग्रो एंड टू बी एट द टॉप। और बहुत ज़्यादा अगर आपको मेहनत करनी है तो ये लोग ये करते हैं, बट टू सर्वाइव एंड डिसेंटली सर्वाइव इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा। आपका जो काम चल रहा है इंडस्ट्री में, इफ़ यू कीप डूइंग दैट डिलीजेंटली, प्रॉपरली, ऑन टाइम, तो चलता रहता है। एंड व्हेन द नीड कम्स कि भाई अभी तक मैं जावा में कर रहा था, एंड लेट्स से अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा पाइथन में आ रहा है या गो में आ रहा है, विच आर द न्यू लैंग्वेजेस, या उसमें मेरे को AWS यूज करना पड़ रहा है, विच इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, तब मैं उसके बारे में पढ़ लूंगा, तब सीख लूंगा, तो चल जाता है काम। ऐसा नहीं है कि ये भाई अभी कोई नई चीज आ गई तो मेरे को अभी जाके पढ़ना पड़ेगा वरना मैं रिडंडेंट हो जाऊंगा, मोस्टली ऐसा नहीं होता। एंड कुछ कंपनीज जिनमें लोग अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स के लिए, पता ही होता है वैसे। मोस्टली प्रोडक्ट कंपनीज के नाम ले लेता हूँ कुछ, जो टॉप कंपनीज है वो तो पता ही है सबको, फैंक, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल। देन इसके साथ की और बहुत टॉप कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एंड ऑब्वियसली सेल्सफोर्स, एडोबी, टावर रिसर्च विच पेज अ लॉट, डी शॉ, गोल्डमैन सैक्स, बहुत कंपनीज हैं। उसके अलावा भी बहुत कंपनीज हैं, आई हैव नॉट कवर्ड इन एनी वे 1% ऑफ द कंपनीज भी, बट हाँ ये कुछ टॉप कंपनीज है अगर आप सोच रहे हो अप्लाई करने का तो। Okay. And do you feel that you have to have a genuine interest in the subject, or even if you don't, people or students can get by? इंटरेस्ट तो हमेशा होना ही चाहिए यार। इंटरेस्ट ऑब्वियसली हेल्प्स आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ करने में, सस्टेन करने में, और उस चीज़ को पैशनेटली करने में। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं, वो जस्ट ज्वाइन क्योंकि उनके फैमिली ने फोर्स कर दिया था कि इंजीनियरिंग कर लो, एंड देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को अच्छा माना ही जाता है बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स। तो बहुत लोग ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं जिनको जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होता, बट वो दे एंड अप बीइंग देयर, वो भी मोस्टली सर्वाइव कर ही लेते हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली हैविंग एन इंटरेस्ट और हैविंग अ पैशन हेल्प्स यू अ लॉट, बट आई हैव सीन पीपल इन माई एक्सपीरियंस जिनको पैशन इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। I think that is relatively difficult in my area. I feel you need to really have that interest to be able to do it. बट एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगती है इकोनॉमिस्ट में, ये वो बहुत है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मोस्टली यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन या ऑन अ पेपर, ऑन अ वाइट बोर्ड। रियल लाइफ से इंटरेक्शन थोड़ी कम होती है। ये पॉजिटिव होता है कि आप मे बी प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जो बहुत मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं, बट फिर भी आप एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे ही अल्टीमेटली। इकोनॉमिस्ट में मेरे को ऐसा लगता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत देखनी पड़ती हैं कि आज के टाइम में मार्केट में, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या GDP है, क्या रियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स की प्रॉब्लम आ रही है या कोविड की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो यू आर बिल्कुल एट द फ्रंट एंड नो व्हाट इज गोइंग ऑन, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यू आर एब्स्ट्रैक्टेड अवे फ्रॉम ऑल दिस। Okay. So, okay, let's come to the final section. Let's do some pros and cons. So, do you want to start with the pros and cons? Pros first. आई थिंक मोस्टली हमने डिस्कस कर ही लिया, बट ठीक है, लेट्स समराइज। Summarize, okay. तो प्रोज है कि ओपनिंग ज़्यादा होती हैं टू गेट इनटू, और बहुत लोग होते हैं तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पूरा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रिपरेशन इजी है उस सेंस में थोड़ी। देन पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अच्छी कंपनीज में बेनिफिट्स देते हैं काफ़ी सारे। फॉर एग्जांपल काफ़ी कंपनीज में ये सब होता है कि आप स्पा कराओ या कोई स्पोर्ट्स खेलो तो वो ये सब रीइंबर्स कर देते हैं। कोई भी वेलनेस की चीज़ है, बेसिकली एनीथिंग दैट इज हेल्पिंग यू बिकम फिजिकली फिट और मेंटली फिट, दे विल रीइंबर्स यू अप टू अ सर्टेन अमाउंट विच इज़ अ गुड कैप, मतलब अच्छे लेवल तक है। एंड
हाँ काफ़ी चिल कल्चर होता है कंपनीज में, क्योंकि बैकएंड है, ज़्यादा क्लाइंट फेसिंग है नहीं, ऑल्दो जो आप बना रहे हो क्लाइंट के पास ही जाएगा अल्टीमेटली, बट टाइमलाइन उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितनी कंसल्टेंसी में होती है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। ये याद आ रहे हैं यार प्रोस तो अभी फिलहाल। एंड कॉन्स ये होगा है कि इफ़ यू आर नॉट in a tier 1 tier 2 college तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था to get into, which is unfortunately the case. Then और क्या होता है? शायद नहीं होता है। नहीं यार होते हैं कौन कभी कभी टाइमलाइंस काफ़ी हार्ड हो जाती हैं। जैसे अब कोई चीज़ है जिसकी कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसकी टाइमलाइन थोड़ी टाइट हो जाएगी, आपको रात रात को काम करना पड़ता है, वीकेंड्स पे काम करना पड़ता है, या जब रिलीज जानी हो बेसिकली, जब कस्टमर्स को पास कोई भी, जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप की अपडेट आ रही है, तो उस अपडेट से एक हफ्ता पहले व्हाट्सएप इंजीनियर्स की लगी पड़ी होती होगी कि अरे अब ये अपडेट जानी है 1 जनवरी तक, तो इसके लिए पूरा काम करना पड़ेगा। या कभी कभी एक ऐसी चीज़ होती है कि आप थ्योरेटिकली किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, कोड लिख रहे हो, आपने 6 महीने वो चीज़ करी, फिर डिसाइड हो गया कि भाई इससे तो ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी नहीं, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, तो वो पूरी चीज़ क्रैप हो जाती है। तो ऑल्दो आपको सैलरी तो मिल ही रही है उस टाइम में, बट थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं आती कि आपने 6 महीने काम करा और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। Right. What about you? So pros would be one, that you work on really exciting things, especially जो न्यूज़ कितनी बार होता है वो न्यूज़ में चल रहा है, आप और उसी पे काम कर रहे हो, जैसे बजट चल रहा है, बजट आया है एंड आप उसी को डिकोड करने में काम कर रहे हो, उसी का एनालिसिस कर रहे हो। सो या दैट इज वेयर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो दैट्स अ बिग प्रो फॉर मी. Second pro would be ki I feel it's a very upcoming field in India. So if you can get into it early on, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर US एंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज में बीइंग एन इकोनॉमिस्ट इज एज गुड एज बीइंग अ गुड एज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, पेमेंट्स, CTC एक्सेट्रा, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एनी अदर रोल. यहाँ पे इंडिया में नहीं है, बट आई डू फील देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि यहाँ पे इट वुड इमर्ज, सो दैट्स अ बिग प्रो. कॉन्स में आई फील वन वुड बी द वर्क लाइफ बैलेंस, because it's so you have to be so up to date and things change really fast that work life balance can be difficult at times. Second would be that openings are not as much because it's very upcoming. So yeah, there's no structure. You have to reach out to people. You have to reach out to people through your network, and बहुत ही close network है. So sometimes people would come to know if you're looking for work वगैरह, because it's a very close knit circle. So yeah. Cool, that's about it, guys. Okay. And you can always reach out to us if you have any more questions or if you want to know more. Yes, we will put our LinkedIn profiles in the description and comment box. Okay. See you guys in the next video. See you in the next video, guys. Bye.